Hello, my dear student of standard 7th, and today we are going to discuss question answer of chapter number 8 medieval architecture. So friends, without any delay, let's get started. Okay, so here is your first question, and I think I have to place my photograph at appropriate place. Okay, done. So as you can see, there is a Somnath temple above my image, and question is also asked, give the information about the places given below. So आपको सारी places की information देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको सोमनाथ दिया गया है. So it can be asked in your exam as a short note. Write a short note on Somnath, and it can be asked for 3 marks. So you are supposed to mention these 5 points. Okay, so students, let's begin. So the Somnath temple is located in Prabhas Patan near Veraval in Junagadh, Saurashtra on the western coast of Gujarat. Okay, so location is given. Point number 2. It is one of the 12 Jyotirling sands of Lord Shiva. So भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से ये एक है. It is one of the most ancient, prosperous and important pilgrim center of the Shivism. So ये भगवान शंकर के भक्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है. एंड पॉइंट नंबर 4, करंटली ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन. ओके, सो हम लोग ओल्ड टेम्पल की साइड से देख सकते हैं. Number 5. The construction of the new temple was completed by 1951. So अभी जो न्यूली बिल्ट टेम्पल है वो अभी जस्ट 1951 में फिनिश हुआ है. इससे पहले सोमनाथ टेम्पल बहुत बार तोड़ा गया है एंड ऑल डेट. ओके, सो ओनली दिस 5 points are sufficient for you to cover up your answer. So let us move to the second short note. So still we are in Gujarat, and the second topic is Dwarka. Okay, so now we are going to discuss about the Dwarka temple. So point number 1, Dwarka is situated in Jamnagar district near the coast of Gujarat on the northern bank of the Gomti river. So again location is given on the first point, and if you write in your exam देवभूमि द्वारका, एक्चुअली जामनगर से एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी देवभूमि द्वारका, एंड इन लोगों ने शायद आंसर्स अपडेट नहीं किए. टेक्स्ट बुक में से मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया है, बट इफ़ यू राइट देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट देन स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज ए राइट आंसर. बट सिंस आपकी बुक पुरानी है तो आप जामनगर लिखो या देवभूमि द्वारका लिखो. आई एम नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स. ओके, सो नाउ द पॉइंट नंबर 2. Constructed in 13th century, the temple became the part of the Char Dham, Haridham pilgrim considered scared by the Hindus in India. So इंडिया के अंदर हिंदू जो होते हैं वो 4 धाम की यात्रा करते हैं, इसमें से एक द्वारका भी आता है. So point number 3, it consists of the 4-armed deity of Lord Krishna within the Garbhagriha, inner sanctum and the Mahamandap, the big prayer hall. सो आपका जो ये मंदिर है इसमें भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा गर्भगृह है, बहुत बड़ा मंडप भी है. ठीक है, और इसमें 4 भुजा वाले भगवान कृष्ण की एक बड़ी सी मूर्ति भी है. वन हैज़ टू क्लाइम, पॉइंट नंबर 4 आई एम रीडिंग, वन हैज़ टू क्लाइम 80 स्टेप्स टू अटेंड द एंट्री इन टू दिस टेम्पल. अगर आपको इस टेम्पल में एंटर होना है तो आपको पहले 80 स्टेप्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा. इट इज़ बिकॉज शायद भगवान कृष्ण को भी पता था कि आगे जाके फ्यूचर में इंसान बहुत ही एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा. मे बी उनको पहले से आइडिया होगा, इसलिए उन्होंने बहुत ही हाई प्लेस पे इस टेम्पल को बनाया था. मे बी आई एम जस्ट गेसिंग आउट. पॉइंट नंबर 5, इट्स शिखर राइज टू 6 स्टोर. Okay, and Mahamandap is 5-storied structure built on 60 pillars. So ये 60 pillars से बना हुआ 6-storied building and 5-storied का मंडप इसमें है. Point number 6, the temple has a rich carving on its outer wall, but the interior are relatively plain. इंटीरियर में आपको थोड़ा प्लेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर आपको बहुत सारा कार्विंग वर्क देखने को मिलेगा. There is a mutt of श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल. तो शंकराचार्य का जो मठ होता है जहाँ पे वो मतलब आश्रम है जहाँ पे वो आदि शंकराचार्य जी रहते हैं,
वहाँ पर उनके मंदिर के जस्ट पास में ही है। वैसे बता दूँ, पॉइंट नंबर 8 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। चलो पहले पॉइंट नंबर 8 कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। Adi Shankaracharya, the 8th century reformer and the philosopher, had set up the mutts in all the four corners of India, and the Dwarkadhish temple is one of the Sada Peeth set up by him. हिंदुओं द्वारा मतलब शंकराचार्य ने 8वीं सदी में यानी आज से कुछ 1200 ईयर्स पहले इंडिया के 4 अलग अलग कॉर्नर में भगवान विष्णु के वैष्णव जो सेक्ट होता है उनके मंदिर सेटअप किए थे, जिसमें से द्वारकाधीश भी आता है। ओके, so student excited for the third one? Let's go. It's a Rudra Mahale. Okay, again भगवान शंकर का एक और आता है, and still we are in Gujarat. Okay, Rudra Mahale is a historical monument located in Sidhpur in Patan district on the bank of the Saraswati river in the northern Gujarat. गुजरात के नॉर्थ में आपको पाटन मिलेगा, वहाँ पे सिद्धपुर नाम की जगह पे रुद्र महाले का एक मंदिर है जो सरस्वती रिवर के पास माना जाता है, एंड ये भगवान शंकर का मंदिर है। So, this magnificent temple dedicated to Lord Shiva, called the Rudra Mahale, was constructed by the Mulraj Solanki and then completed by Siddharth Jaising, then the ruler of Patan. So, इसे बनवाना किसने शुरू किया? इस टेम्पल को बनवाने का काम मूलराज सोलंकी ने शुरू किया, एंड बाय द टाइम सिद्धराज जयसिंह ने इसे फिनिश किया। ओके, सो the temple was an architectural wonder with a 3-storied shikhar, 1600 pillar, 12 entrance door, central mandap and porches on the east, north and the south centrum in the west. So you can see कितना बड़ा मंदिर है। 1600 तो इसके पिलर्स हैं, 3-storied शिखर है, एंड 12 एंट्रेंस। ओके, आई डोंट नो मुझे भी नींद क्यों आ रही है। एनी हाउ, चलो पॉइंट नंबर 4। अराउंड द टेम्पल देयर वेर 18 साइंस ऑफ रुद्र। तो यहाँ पर अभी कुछ टेम्पल के आसपास में इतने रुद्र के साइंस हैं। द ईस्टर्न गेट वॉज एडॉन विद अ ब्यूटिफुल कार्व तोरण। ईस्टर्न गेट पे तोरण लगाया हुआ है विद द फ्लाइट स्टेप्स लीडिंग टू द सरस्वती रिवर। द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द टेम्पल वॉज exuberant as shown by the elaborate and detailed carving of the pillars and the beautiful toran which are the only remains of the temple today. चलो 4th नंबर पे चलते हैं। Again we are still in Gujarat. Actually right now we are in Ahmedabad. Okay, so सिद्धि सैयद जाली, as you can see on the picture, एक बहुत ही सुंदर जाली बनाई हुई है। ओके, इसमें एक ये बिलीव मी एक सिंगल स्टोन से बनाया हुआ है। इसमें जो कार्विंग वर्क है बहुत ही माइन्यूटली किया हुआ है। यू कैन सी ये पाम ट्री और उसको बहुत ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनाया हुआ है। इसको बनाने के लिए आप अगर किसी पत्थर को काट के कोई चीज़ बनाते हो ना, तो आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा पेशेंस इधर उधर हुआ तो कुछ थोड़ा और उल्टा पुल्टा कट गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। द सिद्धि सैयद मॉस्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद लोकेटेड नियर लाल दरवाजा। ओके, लाल दरवाजा इज अ प्लेस जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। इसके पास में लकी रेस्टोरेंट भी है जो यहाँ पे बहुत फेमस है। ओके, सिटी कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। It was built by Siddhi Sayyad in general the army, the last sultan of Samsuddin Muzaffar Shah III of the Gujarat Sultanate. तो इसे इन्हें सिद्धि सैयद ने बनाया है, एंड वो शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह के टाइम पे इसे बनवाया गया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द मॉस्क इज एंटायरली इरेडेड and is famous for a beautiful carved stone, a trick work of window jalis on the side and the near the arc. Okay, so इसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है स्टोन्स पे, एंड इसको एक विंडो के शेप में रखा गया है, एंड जिसको हम लोग जाली कहेंगे। पॉइंट नंबर 4, द रियर वॉल इज फिल्ड विद अ स्क्वायर स्टोन पीस्ड पैनल इन अ ज्योमेट्री डिजाइन। The two bay flanking the central aisle have the stone slabs carved in design for the intertwined
ट्रेस एंड फॉयलेज ऑफ द प्लम मोटिव। ठीक है, ओके। अब हम गुजरात से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, सो इन उत्तर प्रदेश यू विल फाइंड फतेहपुर सिकरी। ओके, so let us discuss the Fatehpur Sikri. After his military victorious over Chittor and Ranthambore, Akbar decided to shift his capital from the Agra to a new location on the Sikri Ridge to honor the Sufi Sant Salim Chishti. Okay, किश्ती या चिश्ती पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मे बी आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली नाउ। अकबर ने है ना रणथंभौर और चित्तौड़ की लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने इस शहर को बसाया और इन्होंने अपने जो सूफी संत हैं सलीम चिश्ती उनके याद में से बसाया है। Here he commenced the construction of a planned walled city, constructed a series of royal places, court, mosque, private quarters and other utility building. उन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्लानिंग से बनवाया था। यू कैन सी इन द इमेज, बहुत बड़ा दरवाज़ा, इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। 55 मीटर का तो उसका सिर्फ दरवाज़ा है। ओके, 50 मीटर। आप लोगों ने पता है ना 100 मीटर रनिंग रेस दौड़ते हैं तो आधी रेस तो मतलब इतना तो बड़ा मीन्स स्विमिंग पूल जितना तो लंबा ही है, सिर्फ बुलंद दरवाज़ा ही है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे रॉयल पैलेस, कोर्ट, मॉस्क, बहुत सारी चीज़ें। ओके, he named the city फतेहाबाद विद द फतेह मीनिंग विक्ट्रीज। इसका नाम फतेहपुर सिकरी इसलिए रखा गया है ताकि फतेह जो होता है वो उसका मतलब होता है विक्ट्री, एंड अफकोर्स इसको अकबर ने अपनी जीतने के बाद ही बसाया था। इट वॉज लेटर कॉल्ड फतेहपुर सिकरी। ओके, बाद में उसको फतेहपुर सिकरी कहा गया। नाउ फतेहपुर सिकरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड कलेक्शन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। फतेहपुर सिकरी को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि मुगल्स ने अपने टाइम पे कितने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, कितने पावरफुल रहे होंगे। ओके, सो प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं अपना रेड फोर्ट देख पा रहा हूँ। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, आई थिंक मैंने आपको 500 रुपीज़ का नोट दिखाया था जिसपे आपको सेम रेड फोर्ट देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ वी आर इन न्यू दिल्ली। ओके, हम लोग अभी नई दिल्ली में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इन एवरी ईयर जो भी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो 15 अगस्त के दिन यहाँ पर हमारा फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। एंड राइट नाउ नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर, सो वो काम अभी वो कर ही रहे हैं 2014 से कंटिन्यूसली 20 तक। सो द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट एज द फोर्टिफाइड फैमिली पैलेस ऑफ द शाहजहानाबाद, कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहाँ। जो मुगल एम्परर शाहजहाँ थे ना, उन्होंने ये रेड फोर्ट बनवाया है। ये पूरा रेड फोर्ट एक पार्ट है शाहजहानाबाद का। इसके अंदर मस्जिद आती है, दीवाने आम, दीवाने खास, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आपको। लेट्स सी, द रेड फोर्ट इज कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द जेनेट ऑफ द मुगल क्रिएटिविटी अंडर द शाहजहाँ, कंसिस्टिंग अनदर other important structures such as the दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग एंड रंग महल। सो ये सारी चीज़ें उनके अंदर कवर की गई है। एंड इट इज़ बिल्ड फ्रॉम द रेड सैंडस्टोन। ओके, ताजमहल के बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, आई थिंक 1632 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 1639 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। ताजमहल तभी बन रहा था और उसके कुछ 13 ईयर्स के बाद ताजमहल कंप्लीट हुआ। ओके, सो ताजमहल के बाद बनना शुरू हुआ और ताजमहल से पहले ही ये बन के रेडी हो गया था। सो एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में जो इमेज दिखाई थी वो मतलब ऐसी थी कि जिसमें आपको जो ताजमहल था वो दिन के टाइम का है। लेकिन नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड। ये है हमारा नाइट वाला ताजमहल। सो चांदनी रात में ये इस तरह का दिखता है। एंड यू नो व्हाट, ताजमहल ऐसा बनाया गया है ना कि वो अलग अलग टाइम पे अपना रंग बदलता है। जस्ट सर्च इमेजेस ऑफ ताजमहल एंड यू शॉक टू नो कि ताजमहल के अलग अलग रंग है। हाँ, ऑफकोर्स वाइट मार्बल से बना है, लेकिन वाइट कलर पे भी अलग अलग शेड्स आते हैं कि नहीं आते हैं। जब मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं ऑरेंज कलर का जब शेडिंग हो रहा होता है तो वो था ऑरेंज शेड आएगा। ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू इट। ताजमहल,
द ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मौसोलियम लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सो ताजमहल जो इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में है, आपको इसकी प्लेस आगरा है, एंड इसे मार्बल के स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, यू कैन सी इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल इन द पूनम नाइट व्हेन वी कैन से इन फुल मून डे। ओके, इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज़ महल। सो शाहजहां ने बहुत शादियाँ की थी, एंड मुमताज़ महल वॉज हिज थर्ड वाइफ। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ के शान में एक बिल्डिंग बनाता हूँ, एंड फिर उन्होंने ताजमहल बनवाना शुरू किया। ओके, सो इट्स एक्चुअली सिंबल ऑफ लव। ओके, पॉइंट नंबर 3, ताजमहल is regarded as the finest example of Mughal architecture and is considered as one of the 7 wonders of the world. ओके, सो मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही सबसे सुपर्ब एग्जाम्पल है, एंड इसे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी जगह मिली हुई है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ द ताजमहल इज वायरली रिकॉग्नाइज्ड एज द ज्वेल ऑफ द मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर मास्टरपीस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, तो इसे हम लोग एक मास्टरपीस कहेंगे, एंड ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसे गिना जाता है। पॉइंट नंबर 5, मैसन, स्टोन कटर, इनलेयर्स, carvers, painters, calligraphers, dome builders, and the other artisans were requested. Okay, I am not able to pronounce it. Requested from the whole of the empire to work the structure. सो शाहजहाँ ने दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर से बहुत ही एक्सपर्ट, होशियार और काफ़ी स्किल लोगों को बुला के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने लगाया था, ऑफकोर्स ताजमहल बनाने का प्रोजेक्ट में। The white marble has been polished to emphasize the requisite detailing of the carving, and the archway have been inlaid with the semi-precious stones. Okay, सो इसमें वाइट मार्बल तो है ही, लेकिन आपको इसमें अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा, इसमें आपको कुरान के वर्सेस देखने को मिलेंगे, इसमें इनले वर्क किया हुआ है। डेट मीन्स कहीं कहीं पे बहुत ही जो महंगे रत्न होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसको भी मार्बल के अंदर में अटैच किया गया है, एंड इसको ब्यूटीफुली बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी हैव फिनिश चैप्टर नंबर 8। ओके, इन दिस स्लाइड सेशन आई हैड पुट सम पिक्चर्स ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। सो फ्रेंड्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, डेट प्लीज़ आप लोग वीडियो लेक्चर पूरा अटेंड किया करो, क्योंकि अभी जो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो आपको आगे चल के काम में आएगी। ओके, एंड यही नहीं, डू फिनिश योर CW ऑल्सो। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी CW स्कूल में चेकिंग के लिए मंगवाई जा सकती है। सो प्लीज़ कंप्लीट इट। एंड वन सजेशन, जैसे मैं अपने प्रेजेंटेशन में मैंने पिक्चर स्टिक किए हैं, आप भी इसे पिक्चर स्टिक कर सकते हो रिलेटिंग टू द टॉपिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने CW में आंसर लिखा, तो आप कितना ब्यूटीफुल लगता है अगर आपने एक छोटा सा फोटो भी इसका पेस्ट किया हुआ है। इट रिक्वायर सम प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ़ोन से एक सोमनाथ का फ़ोटो ले लो, ठीक है, आप द्वारका का फ़ोटो भी ले सकते हो, 2 हो गए। आप रुद्र महाले का ही फ़ोटो एक मतलब स्क्रीन शॉट से ले लो, सिद्दी सैयद की जाली का ले लो, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का ले लो, रेड फोर्ट, ताजमहल, ऐसे आप टोटल 7-8 फ़ोटोज़ ले लो, उसको कॉलेज वाला सॉफ्टवेयर आता है उसमें स्टिक कर लो, और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो। एक ही पेज में आपके सारे 8 निकल जाएंगे, एंड कट करके आप पेस्ट करके इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम आउट कर सकते हो। इमेजिन आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें आंसर में चिपकाते हो। ओके, एंड इट्स अ सजेशन, ये अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। जब आपकी कोई बुक देखेगा तो बोला वाओ, इसको बोलते हैं नोट्स। ओके, सो विद दिस नोट आई एम लिविंग, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड ऑलवेज एट लास्ट यू पीपल आर अमेजिंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय एवरीवन।